Hello friends, good morning. I hope you are all naughty. Today I explain our new topic in EVS Standard 3rd, chapter number 11, From Here to There. From Here to There. यहाँ पर हमारा ये जो नया टॉपिक है उस टॉपिक में आपको सबसे पहले तो ये रिसाइटिंग करना है और ये जो पॉइंट्स दी गई है उसे आप रिसाइट करोगे और रिसाइट करने के बाद उसके जो स्पेलिंग्स है वो आप 5 टाइम्स लिखोगे अपनी नोट्स में. ओके, सो प्लीज़ एवरीवन लिसन हियर. मैं आपको यहाँ पर सिंगिंग करके बताती हूँ जैसे मुझे आता है वैसे आप अपनी ओर से भी गा सकते हैं जैसे भी आपको भाई. द ट्रेन के बारे में ये पूरी पॉइंट्स दी गई है. Come on children, let's play a game. Climb aboard the chugging train. Blow your whistles and take your seats onto shoulders if you pleasure. Forward, backward, forward. Put in a line, don't run outward. Stay in line and shut your eyes. With open eyes, you will nothing spy. Chuk, chuk, chuk. The train is on its way. Stop. All the stations say, on rows of iron we move to and fro. Here come the lines and there they go, across the meadows, over the hills, passing farmers' temples, mills, past village wells and lush a green field with broken boughs and a potato field. Chuk, chuk, chuk. The train is on its way. Stop. All the stations say. Chuk, chuk, chuk. The train is on its way. Stop. All the stations say. Smokes, clouds, fires in crowds, wheelers, fires, riders on miles, flocks of birds, clusters, herds, races and fast, dhobi guards, small tea shops, puddles and flocks. Chuk, the train is on its way. Stop. All the stations way. Hello friends, what do you teach in this chapter? आपको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले आपको इसी चैप्टर्स के ज़रिए क्या पढ़ाई करनी है वो मैं आपको समझाती हूँ. जरा केवल ये समझने के लिए है, इसमें आपको कोई ये पोएम रिसाइटिंग की है, इसके बाद उसको मैं समझाने जा रही हूँ आपको. तो सबसे पहले तो ये टॉपिक इसके बारे में वो आप जरा ध्यान रखो. ओके, तो नाउ इन एंशिएंट टाइम्स horses, camels, bullock carts, horse cars, camel cars, etc. were used for traveling from one place to another. हमें पुराने समय की बात करने की है. तो पुराने समय में लोग एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए किन व्हीकल्स का यूज़ करते थे, कौन से व्हीकल्स का यूज़ करते हैं. तो इन एंशिएंट टाइम्स हॉर्सेस, कैमल्स, बुलोक कार्स, हॉर्स कार्स, कैमल कार्स एक्सेट्रा वर यूज फॉर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. पुराने समय में लोग एक जगह से दूसरी जगह आ जाने के लिए बुलोक कार्स का, हॉर्स कार्स का, कैमल कार्स का आदि कई व्हीकल्स का यूज़ करते थे. पर वो बुलोक्स, कैमल्स और हॉर्स के ज़रिए, ऐसे एनिमल्स के ज़रिए वो एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते थे. With the advent of the science and technology and the invention of the wheel, आप सभी जानते हैं, with the advent of the science and technology and the invention of the wheel, the steam roller and the automobile, various vehicles have been developed. Therefore, in the present times, we have mechanical vehicles like the cars, buses, trucks, railways, aeroplanes, helicopters, steamers, metro trains, etc. to travel from one place to another. आज साइंस और टेक्नोलॉजी का इतना डेवलप हुआ है और इसी टेक्नोलॉजी के ज़रिए आज बहुत सारी इन्वेंशन अस्तित्व में आई हुई है. और इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेंशन की हम बात करते हैं, व्हील की बात करते हैं. तो व्हील इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेंशन ऑफ द
साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आप ये जो साइंस और टेक्नोलॉजी का ये जो टाइमिंग चल रहा है उसमें व्हील की इन्वेंशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। इसके अलावा आप जानते हैं कि with the advent of the science and technology and the invention of the wheel, the steamroller and the automobile, various vehicles have been developed. Therefore, in the present times, we have mechanical vehicles like the buses, trucks, railways, aeroplanes, helicopters, steamer, metro trains, etc. to travel from one place to another. ये ट्रैवलिंग हम अलग अलग व्हीकल्स के जरिए आज हम कर सकते हैं। ट्रैवल ऑन बोर्ड इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ द राफ्ट्स, बोट्स, स्टीमर्स एक्सेट्रा। आज ट्रैवलिंग यदि वाटर एरियाज़ में यदि आप ट्रैवलिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप जानते हैं कि वो भी ट्रैवलिंग आज पॉसिबल हो चुका है। क्यों? क्योंकि राफ्ट्स होता है, बोट्स होती है, स्टीमर होता है। राफ्ट्स, बोट्स, स्टीमर के ज़रिए आज हम वाटर रिसोर्सेज में भी ट्रैवलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा एयर रूट्स की हम बात करते हैं तो एयर एंड स्पेस ट्रैवल इज पॉसिबल विद इन्वेंशन ऑफ द एयरक्राफ्ट। आज जो एयरक्राफ्ट की जो इन्वेंशन हुई उस इन्वेंशंस के ज़रिए आज एरोस्पेस ट्रैवलिंग भी मुमकिन हो चुका है। एयर एंड स्पेस ट्रैवल इज पॉसिबल विद इन्वेंशंस of the aircraft and the helicopter, the rocket and the space shuttle respectively। इसके लिए आप जानते हैं कि एयर सफ़र करने के लिए या तो फिर एयर रूट का हम यूज़ करते हैं, पर एयर रूट का यूज़ आज पॉसिबल हुआ है। कैसे पॉसिबल हुआ है? तो इन्वेंशन ऑफ द एयरक्राफ्ट। आज एयरक्राफ्ट की इन्वेंशन हो चुकी है। सदियों पहले की हम बात करते थे तो वाटर रिसोर्सेज में यदि हम ट्रैवलिंग करना चाहते हैं तो बोट के ज़रिए ट्रैवलिंग करते थे, पर वो ऐसे पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं थी। पर आज ऐसे व्हीकल्स आ गए हैं वाटर रिसोर्सेज के, एयर रिसोर्सेज के, और आप जानते हैं कि व्हीकल्स, तो ये सभी के ज़रिए हम एक या दूसरी रीत से ऐसे ट्रैवलिंग करना मुमकिन हो चुका है। पर एयर रिसोर्स की एयर रूट की बात करते हैं तो एयर एंड स्पेस ट्रैवल इज पॉसिबल विद इन्वेंशन ऑफ द एयरक्राफ्ट। आज एयरक्राफ्ट की इन्वेंशन की गई और इस इन्वेंशन के ज़रिए आज हम एरोस्पेस ट्रैवलिंग भी करते हैं। और इसके अलावा आप जानते हैं कि द हेलीकॉप्टर, द रॉकेट एंड द स्पेस शटल रिस्पेक्टिवली। आज हेलीकॉप्टर है, एरोप्लेन है, फिर रॉकेट है, स्पेस शटल्स है, आदि कई ऐसे व्हीकल्स हैं जो एयर रूट्स के लिए यूजेस कर सकते हैं। तो ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिसके ज़रिए हम एयर ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं। ओके, फिर नाउ देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट इन गुजरात। गुजरात में 4 टाइप्स के ट्रांसपोर्टेशन है, विच आर दे द रोडवेज, एयरवेज, रेलवेज एंड वाटरवेज। 4 ट्रैवलिंग there are 4 types of the transport in गुजरात। गुजरात में 4 टाइप्स के ट्रांसपोर्ट्स है। कौन से है? रोडवेज है, एयरवेज है, रेलवेज है और वाटरवेज है। ये चारों जो रूट्स है वो हमारी ट्रैवलिंग के लिए हमें बहुत उपयोगी साबित होता है। Since India is a country of villages, roadways are the most important mode of travel। भारत की हम बात करते हैं तो भारत देहातों का देश है, गांवों का बना हुआ देश है, और इस देश में सबसे ज़्यादा, सिंस इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ विलेजेस, हम सभी जानते हैं, पुराने समय से बात करते हैं हम, तो इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ विलेजेस, हमारा देश गांवों का बना हुआ देश है। रोडवेज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट मोड्स ऑफ ट्रैवल। इसमें रोडवेज मोस्ट इम्पोर्टेंट माना जाता है क्योंकि ट्रैवलिंग मोड्स के लिए यदि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कोई ट्रैवलिंग सफ़र करते हैं तो वो है रोडवेज। ओके, रेलवेज आर यूजफुल फॉर क्विक एंड चीप ट्रैवल एज वेल एज फॉर द फायरिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर। फिर रेलवे रूट्स आए तो रेलवे रूट्स कैसे यूजफुल होता है हमें, तो रेलवेज आर यूजफुल फॉर क्विक एंड चीप ट्रैवल। यदि यू वांट टू टेक यूजफुल एंड क्विक ट्रैवलिंग विद द हेल्प ऑफ द रेलवे, तो
तो क्योंकि रेलवे ऐसा माना जाता है कि रेलवेज आर यूजफुल फॉर क्विक एंड चीप ट्रैवल एज वेल एज फॉर द फेरिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर। एक जगह से दूसरी जगह बहुत भारी मात्रा में यदि कोई चीज़ें ले जाना चाहते हो, लाना चाहते हो, तो उसके लिए भी रेल रूट्स का यूज़ किया जाता है। एंड देयर आर अ ग्रेट ट्रेडिंग opportunities available through the sea route of the गुजरात का सी रूट भी इम्पोर्टेंट माना जाता है क्योंकि जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ है वो हम सी रूट के ज़रिए सफ़र करते हैं, तभी यह अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है। तो देयर आर ग्रेट ट्रेडिंग opportunities available through the sea route of the Gujarat in a high mountainous areas where railways or roadways are not possible. Ropeways have been built. वहाँ पर हमें गुजरात की बात करें या इंडिया की बात करें तो कई ऐसे हाई माउंटेनस रीजन भी है हमारे इंडिया में और गुजरात में भी, जहाँ पर रेल रोड्स या तो रोडवेज के ज़रिए हमें हमारा ट्रैवलिंग पॉसिबल नहीं लगता है। तो तभी हम कौन से वेज का यूज़ करते हैं? रोप वेज का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? रोप वेज का। और जिसके ज़रिए आज आप पावागढ़ में जाओ, अंबाजी में जाओ, या तो फिर कई ऐसे हिल स्टेशन है जहाँ पर रोपवेज का यूज़ किया जाता है। ओके, टू इंश्योर दैट अ सिक पर्सन गेट्स इमीडिएट ट्रीटमेंट एम्बुलेंस आर अवेलेबल। हमारे इंडिया की हम बात करते हैं तो इंडिया में 108 एम्बुलेंस का जो आयोजन गवर्नमेंट के ज़रिए किया गया है, जिसमें सिक पर्सन को फ़ौरन हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। एंड इफ फायर ब्रेक्स आउट एट एनी प्लेस, द फायर reaches the place as soon as they can be there. फायर इंजन या तो फिर फायर की सुविधाएं भी, जैसे कि फायर ब्रिगेड के ज़रिए कहीं ना कहीं कोई इंसिडेंट होता है, सडन इवेंट होती है, तो उसमें हम ये सारी फायर ब्रेक्स आउट एट एनी प्लेस, फायर द ब्रिज reaches the place as soon as they can with their fire engine. ओके, तो ये सारे रेल रोड्स, एयर रोड्स, रोडवेज और रोडवेज मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दूसरा बनाना पड़ेगा।